Shall we start now? Good morning, you all. Yes, sir. Good morning, sir. Right. So, screen is seen to you. Yes, sir. Right. So today we'll see the architecture of 8086 architecture. Actually, as we have discussed previously, in 8086 Intel processor, we are having two units. That is, the entire architecture is divided into two parts: BIU and EU, bus interface unit and execute unit. And we have discussed all 40 pins of this architecture. Today we'll see the internal structure and what are the registers and memory that's connected and it works. Right? So start with this BIU and EU. In BIU part, you can see bus interface unit. That is, as I told you previously, in this unit, what happens? The processor will be fetching the instruction from the memory and storing into the queue. That is instruction queue, whose length is 6. You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6. And from there only, it will be sending to the execute unit where execution occurs. So in this unit, you can see data bus, address bus. So these two buses are used to fetch the instruction from the memory. I already told you, by using address bus, address will be sent to the memory location. I'll tell you later how the physical address is generated. We are having 20 address lines, right? And out of which 16 are multiplexed to the data lines. And I'll tell you how this physical address is generated, 20-bit address by using 16-bit address lines. Then you can see in this block, this address generation I'll tell you, no problem. Okay, no worry. This address generation I'll tell you on slides I'll share with you. You can make it very clear. Then you see this one is important thing. CS, DS, SS, and ES. An instruction pointer. This is CS nothing but code segment, data segment, stack segment, and extra segment. So what are these segments? These are nothing but the memory. As we have seen in this architecture, we are having 20 address lines. So 2 to the power 20 is nothing but 1 MB. You can calculate it. As in the case of 8085 processor, we have calculated 16 address lines were there. So 2 to the power 16 is nothing but 64 kilobyte. Right? Like that, these 20 address lines can address 1 MB of memory because 2 to the power 20 is 1 MB. So what is done here? This memory, entire memory, 1 MB of memory is divided into smaller blocks and it kept into 4 categories. That categories are nothing but code segment memory, data segment memory, stack segment memory, and extra segment memory. Stack and extra, right? So 1 MB of memory is divided into 4 categories. So if we divide it, you can see in every segment there are 16 smaller blocks. So code segment, either you go for code segment or data segment or extra segment. In these segments, you can find smaller blocks of memory. So you can see the 20 address lines are there, by using which what is done, how memory is addressed. So, yes, what happened? What happened? Okay, so if you divide 1 MB of memory into 4 parts, that is code, data, stack, and extra. So what happens here? 4 lines are used because every segments are having 4 blocks. How many segments are there?
4 segments. In each segment, 4 blocks are there. So totally how many segments are there? How many blocks will be there? 4 into 4, 16. Right. So 16 blocks will be there. In code segment, 4 blocks, data segment, 4 blocks, stack segment, 4 blocks, and extra segment also 4 blocks are there. Each block of size is 64 KB. So you calculate 16 into 64 KB, it becomes what? 1 MB. So by using these 4 lines, that is 17, 18, 16, 17, 18, 19, by using these 4 lines, these blocks are addressed. Okay, as I told you the example, if you take the example of postman, a postman has to deliver letter dispatch to letter door to door. So maybe that postman is assigned 4 streets. Okay, postman is assigned 4 streets, and each street 20 houses are there, for example. Right? How postman will dispatch the letter, deliver the letter? First, postman has to identify this street. To which street shall I go? Street 1, street 2, street 3, or street 4. Any one street. Okay. In that street, how many houses are there? 20 houses are there, right? So first identifying the street number, and then in that particular street identifying the house number. Like that, here we are having 16 blocks of memory because you have divided the memory into smaller blocks. Memory bank, I'll tell you later on. So entire memory is divided into 16 blocks, and these 16 blocks kept into 4 categories: code segment, data segment, extra, and extract segment. Right? Each segment consists of 4 blocks. It means each block size is nothing but 64 KB. So first, the processor is requesting for what purpose? For data purpose, or for code purpose, or for temporary storage purpose, or extra? Which one? Like that, first the segment has to be identified. By using 4 lines, 16, 17, and 18, 19. A16, A17, A18, and A19. 4 lines are there. By using 4 bits combination, how many? 16 combinations are there. How many blocks are there? 16 blocks. So obviously, these 4 lines are good enough to identify one segment. Means identifying the street. Just match it, identifying the street. So identifying the block in this. Right. Once the block is identified, once the street is identified, then what will happen? क्या होगा उसके बाद? अब उस street में किस घर में हमें letter देना, right? So that is nothing but in that segment, in that block, in which memory location the data or code has to be retrieved or fetched. Okay, that is done by using 16 lines because size of block is 64 KB. We have seen in 8085. So 2 over 16 is 65,565, right? That is 64 KB. So A0 to A15 is used to identify the particular memory location. Okay, did you understand? Was clear? Yes, as one may response, please. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So by using these 20 lines, first we identify the memory block, and then in that particular memory block, we identify the memory location. Just like identifying first the street, and then in that street, the house number. So these are nothing but segments: code segment, data segment, extra segment, and extra segment. And then instruction pointer. So we'll be seeing all those. So this is nothing but this bus interface unit. Okay, we'll see one by one. Don't worry. I'll tell you in detail. Then come to this area. In this area, execute unit, you can see the registers are general purpose registers are there. As I told you, these are nothing but it is having 16-bit of register because in 8085 this is 8-bit processor, so it had nothing but 8-bit of registers B, C, D, H, L, W, Z, right? But here since it is the 16-bit processor, it is nothing but having 16-bit of register. Register width is 16-bit. That is given the name AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. What does it mean? High and low. AH means accumulator high order byte. AL means low order byte. That is AH, AL. Then similarly BH, BL, CH, CL, and DH, DL. So this AH means this is 8-bit. Either you use for sometimes the IO device will be connected to the processor. That IO device is nothing but 8-bit. At that time, it indeterminately can be used. AH can be used, or BH can be used, or CL can be used. Okay, whenever the processor has to communicate with the 8-bit device, at that time
This register can be used as 8 bit. So you can take either AHAL or BH or BL, anyone you can take. If it needs to store a 16 bit of data at that time, it will be combined. That is AX, BX, CX, and DX. So AX means this is 16 bit, BX means 16 bit, CX means 16 bit. If it is AL or AH or DL or CH, anyone, H or L, then it is treated as 8 bit of register. Okay, clear? So if you go for 8 bit, then you go for either H or L. If you go for 16 bit, then name is AX, BX, CX, and EX. Okay? After that, stack pointer, you know very well the function of stack pointer, then base pointer, then destination index and source index. This destination index and source index I'll tell you in addressing mode. The function of this index register I'll tell you in addressing mode. Will be giving you more clear picture. Okay, index register. To index the particular data or instruction in the memory, index register is used. Source and destination index. So this is all about your this general purpose register. Then some temporary registers are available here. ALU data bus, and it is temporary register. And in internal control systems, we have seen all these pins are in 40 pin details. Then flag registers, obviously we have seen in the case of 8085, how many flag registers were there? Actually 5 registers were there. Only one register of 5 bits, that is sign flag, zero flag, carry flag, usually carry flag, and parity flag, right? Here we'll be seeing 9. It actually, these registers are 16 bit. So in this case, we'll be seeing 9 flags. 9 bit flag register means it is 16 bit, but only 9 bits are used. In the case of 8085, 8 bit registers were there, but how many bits were there used? 5 bits were used. That is sign, 0, carry, auxiliary carry, and parity. But in this 8086, 9 bits are being used. I'll tell you. These flag registers are kept into 2 categories. Next, we'll be seeing that. So this is about your execute unit. So I told you already the advantage of this dividing this entire architecture into 2 blocks, BIU and EU, because it becomes much more faster compared to the 8085. Because when this BIU is involved to fetch the data from the memory, at the same time this execute unit will be executing instruction, because it no need to go to fetch from the memory. It will be taking from the instruction from where? From this instruction queue. So it becomes much more faster compared to the this 8085 process. Okay, clear? Understood? Yes, sir. राइट आप कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछते चलना, ठीक है? भानु इज प्रेजेंट टुडे? मिस्टर भानु? राइट. See next one. डेडिकेटेड एड्रेस टू जनरेट 20 बिट एड्रेस. कैसे जनरेट होगा मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना? उसमें थोड़ा शिफ्ट ऑपरेशन भी यूज होता है, ठीक है ना? ये सब मैं एक स्लाइड में आपको क्लियर कर दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा. हाउ फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड, ठीक है ना? Then 4 16-bit segment registers, as I told you, port segment, data segment, stack segment, and stack segment. These are the stack segment registers. ठीक है ना? आगे. Let us see this bus interface unit. जो मैंने अभी बताया था आपको सेगमेंट रजिस्टर के बारे में, फिजिकल मेमोरी है, ठीक है? इसको डिवाइड किया गया आपको हमने सेगमेंट्स में, सेगमेंट 0 1 2 3 4. ये सेगमेंट टोटली कितना आपको 1 MB ऑफ मेमोरी है, डिवाइड इनटू सेगमेंट ऑफ 64 किलोबाइट्स ऑफ ईच, ठीक है ना? कितने बाइट में किया है? 64 किलोबाइट. क्यों 64 में किया गया है? कि जो मैं आपको बताया था कि 16 लाइन्स आर यूज्ड टू एड्रेस 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, एंड जो 4 रिमेनिंग लाइन्स बच जाएगा वो, जैसे कि मैं आपको बताया था कि आपको एड्रेस फाइंड करने के लिए, स्ट्रीट फाइंड करने के लिए 4 स्ट्रीट है तो 2 बिट का अगर वैल्यू हम यूज करेंगे तो 4 स्ट्रीट आइडेंटिफाई हो जाएगा. लाइक दैट अगर हमारे पास 16 ब्लॉक्स होगा तो 4 लाइन मोर देन इनफ टू आइडेंटिफाई 16 blocks. 8086 can directly address 4 segments, 256 kilobyte
within 1 MB of memory at the particular time. From obtain access to code and data in the segment by changing the segment register content to point to the desired segment. All those things I'll tell you next one, in the next slide. See here. यहाँ पर आपको हम ये बताने जा रहे हैं 2 स्लाइड में कि एड्रेस कैसे जनरेट होगा, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि 8086 में हाउ टू जनरेट 20 बिट एड्रेस, ठीक है ना, सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. राइट, Yes, sir. इसको हम पढ़ते हैं। 8086 हैज अ कांसेप्ट ऑफ मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी सेगमेंटेशन कांसेप्ट जो उसमें होता है कि उसके पास 1 MB ऑफ मेमोरी है, और हम चाहते हैं कि स्पेस भी कम यूज हो उसमें, तो इसलिए हमने सेगमेंटेशन का यूज किया है। It is a method where the whole memory is segmented, divided into smaller parts called segments. These segments are code segment, data segment, stack segment, and extra segment. Each segment has a corresponding 16-bit segment registers which hold the base address. अब देखिए, हर एक सेगमेंट के लिए क्या होता है, आपको एक सेगमेंट रजिस्टर होता है जो क्या होल्ड करता है, बेस एड्रेस, स्टार्ट एड्रेस ऑफ दैट सेगमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना एग्जांपल में कि 4 स्ट्रीट दिया है किसी पोस्टमैन को, और हर एक स्ट्रीट में मान लीजिए 20 हाउसेज है, तो पोस्टमैन जब भी लेटर डिस्पैच करेगा, डिलीवर करेगा घर में डोर टू डोर जाके, उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको एड्रेस पता होनी चाहिए कि भाई कौन सा स्ट्रीट में मुझे जाना है, ठीक है। और स्ट्रीट में जाने के बाद स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो उस स्ट्रीट का पहला घर का एड्रेस उसको पता होगा, हाउस नंबर 21 22 23 24 25। तो 21 इज द बेस एड्रेस बिकॉज फ्रॉम देयर ओनली इट स्टार्ट्स, ठीक है ना, रिगार्डिंग पॉइंट। so that is the base address which is held by the segment register of segment at any given time. 8086 can address 16 bit into 64 kilobyte, that is 256 kilobyte of memory chunk of 1 MB at any particular time। कितना को एड्रेस कर सकता हो, सोचिए यहाँ पर समझने वाली बात है। क्या बोल रहा है, 16 बीट इंटू 64 किलोबाइट। क्यों क्यों क्या किया उसने, पोस्टमैन क्या किया, पहले 4 स्ट्रीट था उसके पास, तो पहले क्या किया उसने, स्ट्रीट को आइडेंटिफाई किया, राइट। और स्ट्रीट को आइडेंटिफाई करने के बाद उस स्ट्रीट में पर्टिकुलर हाउस में जाके लेटर को डिलीवर करेगा। लाइक दैट इसके पास कितना है सेगमेंट्स, आपको कितना ब्लॉक्स मैंने बताया आपको, 16 ब्लॉक्स है, ठीक है ना, जिसको 4 कैटेगरीज में रखा गया है, कोड में, डाटा में, स्टैक में, एक्स्ट्रा में, और सारे सेगमेंट के पास 4 ब्लॉक। तो एट पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम पर कितना मेमोरी एड्रेस हो जाएगा, 16 बीट ऑब्वियसली 64 किलोबाइट का है इनटू 64। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला 4 लाइन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर रहा है, मींस स्ट्रीट को आइडेंटिफाई कर रहा है, और रिमेनिंग 16 जो है वो पर्टिकुलर हाउस नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। लाइक दैट 16 बीट इनटू 64 किलोबाइट इक्वल टू 256 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, इतना आइडेंटिफाई कर सकता है आउट ऑफ कितना, 1 MB में। So 8086 has 20 bit address line, so the maximum value of address can be addressed by 2 over 20, that is 1 MB. So 8086 can address the location ranging from 5 times 0 to 5 times f. उसमें कितना था 8085 में, 4 times 0 to 4 times f, that is 64 kilobyte। इसमें चूंकि 1 MB है तो कितना होगा, हेक्साडेसिमल वैल्यू 5 times 0h to 5 times fh, that is nothing but 1 MB। This 1 MB memory is divided into 16 लॉजिकल सेगमेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कितने सेगमेंट्स में, 16 लॉजिकल से, लॉजिकली डिवाइड होता है, फिजिकली डिवाइड नहीं होता, कीप इन माइंड, लॉजिकली डिवाइड किया जाता है। ईच विथ अ मेमोरी ऑफ 64 किलोबाइट, सारे सेगमेंट का, सारे ब्लॉक का साइज क्या हो जाएगा, 64 किलोबाइट। To locate any address in the memory bank, it needs the physical address of that memory location. It cannot get the 20-bit physical address using 16 address lines, ठीक है ना। In order to access memory location, you cannot pass 20-bit address directly to the processor. You need to tell the 16-bit address with respect to the segment. Exactly वो example फिर दोबारा लगाना कि 4 स्ट्रीट है, हर एक स्ट्रीट में 20 हाउसेज है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंटेशन का कंसेप्ट लगा गया। अगर सेगमेंटेशन कंसेप्ट नहीं हो, क्योंकि इसमें आपको डाटा भी है, कोड भी है, स्टैक भी है, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। इसका मैं पर्पस बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्या पर्पस होता है,
स्टैक का क्या पर्पस होता है, आप यू मस्ट बी नोन बाय नेम सेज कोड सेगमेंट में, जहां पर कोड स्टोर किया जाएगा, डाटा सेगमेंट जहां पर डाटा स्टोर किया जाएगा, स्टैक जहां पर टेम्पोरली सम ऑपरेशंस का रिजल्ट स्टोर करता है प्रोसेसर, उसके लिए स्टैक होगा। जब एक्सीड करेगा डाटा या कोड उस मेमोरी रेंज से, उसके बाद क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज किया जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, so this 16-bit address with respect to part of the memory bank is called offset value. Keep in mind, this 16-bit address with respect to the part segment of 64 kilobyte of memory bank is called offset value. Distance कहां से कहां तक, I'll tell you offset value next slide. Let us see this physical address कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। फिजिकल एड्रेस इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट वैल्यू। क्या ऑफसेट क्लियर हो जाएगा, आगे चल के देखते हैं। Suppose the data segment holds the base address as 1000H and the data you need is present in 0020H. समझ रहे बात को, आप समझिए इस चीज को। क्या बोला, सपोज द डाटा सेगमेंट होल्ड्स द बेस एड्रेस एज, तो डाटा सेगमेंट जो मेमोरी है ना, उसका बेस एड्रेस क्या बोल रहा है, 1000H बोल रहा है, मींस स्ट्रीट नंबर 1 फॉर एग्जांपल। कीप इन माइंड स्ट्रीट नंबर 1, समझ पा रहे हैं आप लोग, एग्जैक्टली कीप इन माइंड द स्ट्रीट एंड हाउसेज, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो सपोज मान के चलो कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि बेस एड्रेस क्या है 1000H, इट मींस पहला स्ट्रीट, एंड द डाटा यू नीड टू प्रेजेंट इन 0020H, मींस जो हाउस है जिसमें लेटर डिलीवर होगा, डिस्पैच होगा, वो हाउस नंबर क्या है 20 है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन ऑफ द डाटा सेगमेंट, द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एड्रेस इज डन एज फॉलोज। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, आप समझे बात को। मैंने क्या लिया, पहले फर्स्ट स्ट्रीट लिया हमने, जो यहाँ पर हमने क्या लिया 1000H, उस स्ट्रीट में हाउस नंबर क्या है 20 है, राइट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। उस स्ट्रीट में जाने के बाद 20th हाउस में जाके उसको क्या करना होगा, लेटर डिस्पैच करना होगा। लाइक दैट जब डाटा इसको रिट्रीव करना होगा, डाटा को फेच करना होगा प्रोसेसर को, तो कहाँ जाएगा, पहले वो उस सेगमेंट में जाएगा। क्या नाम है सेगमेंट का, डाटा सेगमेंट, जिसका स्टार्ट एड्रेस क्या 1000H है। वहां से कहाँ जाना पड़ेगा उसको, उस सेगमेंट में 20th लोकेशन में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, 20th लोकेशन में जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक रीचिंग द पोस्टमैन इन 20th हाउस। क्लियर है, समझे बात को। यस सर। राइट, Yes, आगे देखते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन यूज होता है, आप लोग शायद पढ़े होंगे इसी सब्जेक्ट में। शिफ्ट ऑपरेशंस होता है, लिनियर शिफ्ट होता है, सर्कुलर शिफ्ट होता है, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट ऑपरेशंस आर देयर, जिसमें शिफ्ट रजिस्टर का यूज होता है। ठीक है, सो क्या है स्टेप्स में बोलता है, लेफ्ट शिफ्ट द 16-bit एड्रेस प्रेजेंट इन द सेगमेंट रजिस्टर बाय 4 बिट। ठीक है, सेगमेंट एड्रेस का जो कंटेंट है, सेगमेंट रजिस्टर का जो कंटेंट है, उसको क्या बोल रहा है, शिफ्ट लेफ्ट करना है। कितने बीट, 4 बीट, बीट बाय बीट करना है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, 4 बार क्या करना है उसको, शिफ्ट लेफ्ट करना है। यू मस्ट बी नोन योर शिफ्ट ऑपरेशन। ये है लिनियर शिफ्ट, फिर होता है सर्कुलर शिफ्ट होता है, ठीक है ना, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन होता है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन होता है। ऑल दीज आर द शिफ्ट ऑपरेशन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका कन्वेंशन क्या है कि आप शिफ्ट लेफ्ट करिए। 16-bit एड्रेस जो सेगमेंट रजिस्टर में प्रेजेंट है, जो बेस रजिस्टर में प्रेजेंट है जो एड्रेस, उसको क्या करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है बीट बाय बीट। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा है बेस कंटेंट, बेस रजिस्टर का कंटेंट, डाटाबेस, सॉरी डाटा सेगमेंट कंटेंट क्या है 1000H है, ठीक है ना। उस 1000H को आप क्या करेंगे, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले। ठीक है, तो देखिए 4 बिट का बाइनरी कन्वर्ट हो गया, मैं बताया था आपको, that has to be converted into 4 bit binary because we are going to use hexadecimal number 8421 code, so you convert this into binary bit, and then once you convert into 4 bit binary it becomes 4 bit कितना बन जाएगा, वो 16 bit बन जाएगा। क्लियर है ना। so this is 1000H, so this is 1000H। अब इसको क्या बोलता है कि भाई आप इसको शिफ्ट करिए लेफ्ट, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। तो किसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो बेस एड्रेस का कंटेंट, उसको हम क्या करेंगे, बाइनरी बीट में कन्वर्ट कर, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको शिफ्ट लेफ्ट करेंगे बीट बाय बीट 4 टाइम्स। उसके बाद में क्या बोला, ऐड द 16-bit ऑफसेट एड्रेस
कौन सा ऑफसेट एड्रेस आपका? हाउस नंबर 20, हाउस नंबर 20, जहां पर क्या करना है, लेटर को डिस्पैच करना है, जहां पर प्रोसेसर को जाके मेमोरी रीड करना है, दैट इज ऑफसेट वैल्यू 20th हाउस या 20th लोकेशन ऑफ द मेमोरी. So after shifting, just add this offset value and जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा फिजिकल एड्रेस हो जाएगा. So let us see here. आप तो देखा यहाँ 1000H था, हमने कन्वर्ट किया बाइनरी बिट में, 4 बिट बाइनरी में. तो ये देखिए ये हो गया. उसको हमने क्या किया, शिफ्ट लेफ्ट किया. जितना बिट हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे उतना राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, करते जाएंगे, 0 ऐड करते जाएंगे. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1000H को हमने जो शिफ्ट किया 4 बिट्स को, आगे क्या हो गया, 4 टाइम्स 0 हो गया, 0 0 0 0. ठीक है. अब क्या करेंगे हम, अब सेट वैल्यू को ऐड कर देंगे. ऐड करने के बाद देखिए आपका 20 बिट एड्रेस बन गया. नाउ द एड्रेस इज, सो द एक्चुअल एड्रेस टर्न आउट टू बी 10020H. At any point of time we can change the base address of the segment register and use the memory location in those segments using the offset. समझ गए बात को? लाइक दैट यहाँ पर हमने लिया है डाटा सेगमेंट, चाहे इसमें कोड सेगमेंट भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट भी हो सकता है और स्टैक सेगमेंट भी हो सकता है. कोई भी सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है, जो बेस वैल्यू है, उसको 4 बिट बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसको फिर 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, उसके बाद जो ऑफसेट वैल्यू होगा उसको हम ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट माना जाएगा आपका फिजिकल एड्रेस. तो पहले देखिए 16 बिट था, अब कितना बिट बन गया, 20 बिट बन गया, नहीं बन गया, because processor needs 20 bit address because it is having 20 address lines. अब देखिए ये प्रोसेस करने के बाद क्या हो गया हमारा, how many bits of address, 20 bits of address, that is 10,020H. क्लियर है, समझ गए? और एनी क्वेरी? कुछ क्वेरी हो तो बोले आप लोग. और अंडरस्टूड? Understood, sir. रिपीट करें? Yes, sir. ओके. हम क्या भी सीख रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट, हाउ टू जनरेट फिजिकल एड्रेस टू रीड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी, आइदर इट इज डाटा और इट इज इंस्ट्रक्शन. तो हमने देखा यहाँ पर 4 सेगमेंट्स था, कोड सेगमेंट था, डाटा सेगमेंट था, स्टैक सेगमेंट था और एक्स्ट्रा सेगमेंट था. कोई भी सेगमेंट ले लो हम, मतलब प्रोसेसर क्या चीज प्रोसेसर को चाहिए, डाटा चाहिए तो डाटा सेगमेंट में जाएगा, कोड चाहिए तो कोड सेगमेंट में जाएगा, टेम्पोररी स्टोर करना होगा कोई रिजल्ट तो स्टैक सेगमेंट में जाएगा, और एडिशनल स्पेस चाहिए तो कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट में जाएगा. तो कैसे हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करें? तो जो बेस एड्रेस होता है, जो मैंने बताया था आपको, स्ट्रीट, स्ट्रीट का एड्रेस, तो वो बेस एड्रेस जो बेस रजिस्टर में स्टोर होगा उसको बोलते हैं हम बेस एड्रेस. उसको हम क्या करेंगे, वो 16 बिट होता है बिकॉज हमारा रजिस्टर कितना बिट का है, 16 बिट का है. तो उसको हम क्या कर लेंगे, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर क्या था आपको 1000H, इस 1000H को हमने क्या किया, 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया है. ठीक है, तो 16 बिट हो गया. वो इसको क्या बोलता है कि लेफ्ट शिफ्ट करना है, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट करेंगे. 1 बिट्स लेफ्ट करते जाएंगे शिफ्ट, तो आगे तो खाली होता जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारा पोजीशन खाली होता जाएगा ना. सुनो, जब शिफ्ट कर खाली होगा, जो पोजीशन खाली हो रहा है उसमें क्या करेंगे, 0 ऐड करते जाएंगे, उसमें क्या रखते जाएंगे, 0 रखते जाएंगे. तो 4 टाइम्स हमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो 4 पोजीशंस ब्लैंक हुआ, आपका एम्प्टी हुआ राइट हैंड साइड में. तो 4 पोजीशंस को क्या करते हमने, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ शिफ्ट. ये शिफ्ट ऑपरेशन का रूल है. ठीक है, जैसे आपने लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या करो आप, राइट हैंड साइड में जितना पोजीशन शिफ्ट किया उतना पोजीशन आप 0 ऐड करते जाओ. हमने 4 टाइम्स शिफ्ट किया तो 4 0 यहाँ पर किया, तो कितना हो गया, देखिए पहले 16 बिट था, क्या हो गया 20 बिट हो गया ऑटोमेटिकली. इसके बाद में क्या करना है, जो ऑफसेट वैल्यू है, जो हाउस नंबर है, जो मेमोरी का लोकेशन है जिसमें डाटा है, उस एड्रेस को, उस ऑफसेट वैल्यू को 820 बिट में ऐड कर देना है. यहाँ पर सिंपली ऐड किया हमने. तो पहले था कि आपको 1000H था, फिर 20H था, तो दोनों को हमने ऐड किया, शिफ्ट करने के बाद क्या बन गया, 10,020H बन गया. सिंपल ऑपरेशन. ठीक है, क्लियर? क्लियर है? सर यस यस. 20H को भी कन्वर्ट किया आपने 4 बिट में, बट शिफ्ट नहीं किया. नहीं, इसको नहीं करना है, बस आपको जो बेस रजिस्टर का जो कंटेंट है ना, सिर्फ उसी को शिफ्ट करना है.
ठीक है। जो ओके ऑफसेट वैल्यू है ना, ऑफसेट वैल्यू को हम शिफ्ट नहीं करेंगे, ऑफसेट वैल्यू को हम एक हमें दिमाग में रखना, ऑफसेट वैल्यू जो होता है हाँ उसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे, उसको एज इट इज हम 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसको सीधे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यस सर। चलिए ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर, सो वाले अटेंडेंस ले ले। अच्छा भानु नहीं है प्रेजेंट आज, भानु इज नॉट प्रेजेंट। No, sir. शैलेंद्र Yes. आप 9 सर। लोग का 9 एब्सेंट है आज, 9 का नाम लिख के मेरे को भेज देंगे, पोस्ट कर देंगे प्लीज, ठीक है। Okay, sir. सो आज के लेक्चर में कुछ क्वेरी है, इसको आप आर्किटेक्चर को हम पहले अच्छे से समझेंगे तो आगे जाके बहुत इजी होगा, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। पहले मैं यही फोकस कर रहा हूँ कि इसमें मेन चीज आपका आर्किटेक्चर, पिन डिटेल्स, रजिस्टर एंड मेमोरी डिटेल्स एंड एड्रेसिंग मोड्स, इतना हम समझ लेंगे ताकि हम इंटरफेसिंग में, प्रोग्रामिंग में हम बहुत इजी हो जाए, उसके बाद कुछ भी नहीं। मेनली हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। अच्छा शैलेंद्र, शैलेंद्र Yes, sir. हाँ चंद्रेश का अटेंडेंस लगा देना, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। चंद्रेश का अटेंडेंस भी लगा देना, ठीक है ना। Okay, sir. मेरे को मैसेज कर रहा है, तो चंद्रेश को जोड़ के कितना हो जाए 25, तो 10 लोग एब्सेंट होगा, ठीक है ना। Okay, sir. अब ऐसा तो कोई नहीं कि क्लास में आके फिर से डिस्कनेक्ट हुआ है, ऐसा कोई है? मीन्स 26 हो गया, 25 मीन्स एक्सक्लूडिंग मी 25, हाँ 10 लोग एब्सेंट है, 10 लोग का नाम मेरे को भेजना, पता चल रहा है इसमें, आइडेंटिफाई हो जाएगा ना। सर मैं देख कर बता दूंगा आपको, नाम भेज दूंगा। हाँ नाम लिख के मेरे को भेजना, ठीक है। Yes, sir. तो आप सबको मैंने ये नोट्स, ये पीपीटी मैंने डाल दिया था क्लासरूम में, आप सबने ले लिया वहां से। पंकज, पंकज, प्रिंस, यस सर। ले लिया आपने पीपीटी वहां से क्लासरूम में जो मैंने डाला था, शेयर किया था?